নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছো আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক মেজ মেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আপোনালোকৰ বহুতৰে পৰিচিত ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ পথিকৃত নিৰ্বাচন কৌশলী প্ৰশান্ত কিশোৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ প্ৰাগ চেনেলত প্ৰশান্ত কিশোৰক পাবলৈ আমি বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আজি অৱশেষত সফল হৈছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মই প্ৰশান্ত কিশোৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনাক মই ইংৰাজীত প্ৰশ্ন সুধিম আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ্থে হিন্দীত উত্তৰটো দিব প্ৰশান্ত কিশোৰে মোক আচৰিত কৰি ক'লে যে আপুনি মোক অসমীয়াতে সুধিব মই হিন্দী ইংৰাজী মিশ্ৰিত ভাষাত উত্তৰটো দিম প্ৰশান্ত কিশোৰ অসমৰ জোৱাই বহুবোৰ দলৰ লগত নিৰ্বাচনী কৌশলত ব্যস্ত আছিল যোৱা দুটা দশক প্ৰশান্ত কিশোৰ জনতা দল ইউ মমতা বেনাৰ্জীৰ দল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বিজেপি আপুনি নাম কক তেওঁ সকলোৰে নিৰ্বাচনী কৌশল ৰচনা কৰিছে আৰু 90 সংখ্যক দলকে তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰোৱাৰ ক্ৰেডিট পাইছে প্ৰশান্ত কিশোৰ welcome to Prague News. Thank you. So you have told me that you can follow Assamese very Yes, well. I followed whatever all you said. Okay, that's great. মই প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে লাষ্ট 5 ষ্টেটছৰ যি ইলেকশ্যন হ'ল নিৰ্বাচন হ'ল তাত সেইটো বেকড্ৰপত আপুনি 2024ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো কি ধৰণে আপুনি দেখিছে আপুনি হিন্দীত কওক देखो ऐसा है कि स्टेट जो इलेक्शंस हैं उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नेशनल इलेक्शन से नहीं है जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड पिछली बार 2018 नवंबर दिसंबर में आउट ऑफ 4 स्टेट 5 स्टेट दैट वेंट टू पोल द सेम स्टेट्स ये कांग्रेस 3 स्टेट जीत के आई जी राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जी और बीआरएस जीती तेलंगाना में और बीजेपी को वहाँ 1 सीट मिला था हाँ वोट शेयर इन लो सिंगल डिजिट डिस्पाइट दैट दे वेंट ऑन टू विन मोर देन 300 सीट्स So you can count on many such examples where state assemblies, important as they are, would not have a direct correlation with the outcome in the general election because people are smart enough. Even though we think कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, people are smart enough to make distinction between local body, assembly and national elections. So, but definitely, if as a party you win, you go with a bit more punch in your feet. But ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेट जीत गए तो नेशनल जीतोगे और नेशनल जीत गए तो स्टेट जीतोगे तो प्रशांत किशोर जी मैं এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ CSDS এ আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত এটা সাৰ্ভে কৰিছিল তাৰ পাছতো এটা সাৰ্ভে কৰিছে 5 বছৰ আগত তাত তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে এজ এ সাৰ্টেন পাৰ্সেন্টেজ অফ পিপল তেওঁলোকে লিডাৰ চাই পেলাই ভোট দিয়ে certain percentage of people local issues ot vote diye আর certain percentage of people তেওঁলোকে পাৰ্টিক ভোট দিয়ে এতিয়া লোকসভাৰ কাৰণে কোনটো ফ্যাক্টৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট द लीडर पार्टी एंड द देखो ये जो CSDS के सर्वे की आप बात कर रहे हो जनरली इफ यू पोल व्हाई डू पीपल वोट फॉर अ पार्टी और अ लीडर पीपल विल गिव यू दिस एग्जाम पहला जो पार्टी है पार्टी / विचारधारा व्हाटएवर दैट पार्टी रिप्रेजेंट्स उसके लिए लोग वोट करते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज सोसाइटी में जिसको कम्युनिस्ट को वोट करना है जिसको बीजेपी को वोट करना है देन देर आर पीपल हु वोट बेसिस द कैंडिडेट देर आर पीपल हु वोट ऑन द बेसिस ऑफ हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी एंड देन द इश्यूज सो पुट टुगेदर ऑल 4 you cannot say one versus other but if you have to pick a single factor out of these 4 I would still say the party is the single biggest factor may not be the delta but you know you can create a delta only if you have a base yes so a lot of people when they say Modi but you have he is the delta on the for the base which comes because of the BJP the ideology and other work the RSS and their legwork yes everything put together. The party the ideology the work the credibility whatever they have built over last many years and that's why you see no matter how big a leader you are if you leave the party and you fight an independent the same person does not get that charisma now look at some of the big names like Kalyan Singh in BJP Uma Bharti
lot of people who have left the party and have tried their hand with a different party name or regional party, they haven't been very successful. Yes, true. So look at in any which way, party is the most important factor. Then other three also plays the role, no doubt about it. But it's very difficult to pinpoint and put a number that what percentage vote for party and what percent. It's also, there are people who say BJP with Modi and there are people who say BJP with or without Modi. Without Modi. So make a very categorical number. CSDS does survey, so of course they will ask and they will share the data. Yes. But if I have to interpret that data, it's also there's a lot of interplay between these four factors. So प्रशांत किशोर जी আপুনি চাওক তিনিখন ষ্টেট মই ধৰিছোঁ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়। ৰাজস্থান বাদ দিলোঁ মই, ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এনালিষ্টবিলাকে কৈ আছে যে মোদী গেৰাণ্টিয়ে খুব কাম কৰিলে। মোদীয়ে ক'লে লাডলি আৰু বেহানাত পইচা বঢ়াই দিম, টকা বঢ়াই দিম। মোদীয়ে অমুক গেৰাণ্টি দিলে, মোদীয়ে তমুক গেৰাণ্টি দিলে, এনেকুৱা কৈ আছে। এই মোদী গেৰাণ্টিটো কামত আহিছে, গতিকে মোদীয়ে ছিংগল ফেক্টৰ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে লোকসভাত? No, of course, मतलब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द फेस फॉर द बीजेपी. नेचुरली वट एवर ही ब्रिंग्स टू द टेबल, मतलब वो अच्छा या खराब जो भी लाते हैं, तो मोदी तो बड़ा फैक्टर है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है. विधानसभा में वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है जितना वो लोकसभा में होता है. तो ये आप कह सकते हैं कि बिकॉज लोकसभा में मोदी खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, विधानसभा में वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हेमंत बिश्व शर्मा को के लिए दे दो, या आसाम में बीजेपी लाने के लिए दे दो, या डबल इंजन सरकार बनाने के लिए दे दो. ही इज नॉट आस्किंग फॉर हिमसेल्फ. तो उसमें फ़र्क है. अगर आप डेटा देखोगे 2014 से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सो बिटवीन 2014 टू 2019 बीजेपी का जो अंडर परफॉर्मेंस है विधानसभा इलेक्शन में, दैट एवरेज अराउंड 3 परसेंटेज पॉइंट. मतलब अगर 30% वोट उनको लोकसभा में मिला तो 27% वोट उनको विधानसभा में मिलेगा. अच्छा. पोस्ट 2019 नाउ दैट अंडर परफॉर्मेंस इज रीचिंग डबल डिजिट. 8-9% वोट उनको लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में कम आता है. सो जो एक है कि भी जब मोदी जी खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अगर 10 आदमी वोट दे रहा है, तो आज के तारीख में अगर मोदी जी आपके लिए वोट मांगेंगे तो शायद वो 7 लोग ही वोट देंगे या 5 लोग ही वोट देंगे. तो लोकसभा में वो बीजेपी को एडवांटेज है. लोकसभा में बीजेपी को वो एडवांटेज है जी. अच्छा, আপুনিতো বহুত পাৰ্টিৰ লগত কাম কৰিছে, বহুত পাৰ্টি আপোনাক এনগেজ কৰিছে। নীতিশ কুমাৰ, মমতা বেনাৰ্জী, ৰাহুল গান্ধী, বিজেপি পাৰ্টি সবৰ আপনি काम কৰিছে। আপনি বিদেশতো किया करते थे, काम तो छोड़ दिया. छोड़ दिया. अच्छा, yes, that is right. करते थे. वो तो 2021 में जब बंगाल का रिजल्ट आया, तो 2 मई 2021 को मैंने नेशनल टीवी के सामने आकर कहा कि अब मैं जीवन में आगे किसी पार्टी या दल के साथ काम नहीं करूंगा. बिफोर दैट, बिटवीन 2011 टू 2021, वो 10 साल जो मैंने काम किया है, तो वो आप ठीक है, गुजरात में काम किया मोदी जी के साथ, नेशनल इलेक्शन में किया, फिर बिहार में किया, फिर पंजाब में किया, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बहुत किया है. वो तो किया, लेकिन वो तो करके छोड़ दिया. अब उसका कोई बहुत महत्व नहीं. কিন্তু মোক এটা কথা কওক, আপুনি প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন মেচিনৰ লগত আপুনি ফেমিলিয়াৰ, প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিৰ थोड़ी बहुत जानकारी है. फैमिलियर ऐसा है तो नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ही सब आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर देखने का अनुभव. বিজেপিৰ ইলেকশ্যন মেচিনটোত এনেকুৱা কি কথা আছে जितुए इलेक्शन जिकी थकार तार शक्ति है? नहीं, देखो, एक तो पहली बात, आप ये मत समझो कि बीजेपी सारे इलेक्शन जीत रहा है. ठीक है, अभी आज इस देश में 15 राज्यों में, 16 राज्यों में आज भी नॉन बीजेपी सरकारें हैं. और 2014 से 2022-23 तक बीजेपी को कई जगह पे लोगों ने हराया है. एक तो आप ये देखो कि बीजेपी विज़ेवी कांग्रेस, जब वो कांग्रेस से उनका मुकाबला होता है, देन दे अपीयर इनविंसिबल. कांग्रेस के मुकाबले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10-12 सालों में. जहां भी उनकी कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, वहां पर बीजेपी जीत कर आई है. अगर आप रीजनल पार्टीज के मुकाबले देखेंगे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
जैसे 2-3 राज्यों को अगर आप छोड़ दें, हालांकि बड़े राज्य हैं इसलिए बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे जहाँ बीजेपी जीत रही है उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। तो यस, बीजेपी का अपना स्ट्रेंथ है, बट इट्स ऑल्सो अ फंक्शन, देयर विक्ट्री इज फंक्शन ऑफ कि अपोजिशन जो कांग्रेस है वो उतनी मजबूत नहीं है या उतनी मजबूती से वो लड़ती नहीं है, चुनाव नहीं लड़ते, वो फैक्टर है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मशीनरी कोई ऐसी है जिसको हराया नहीं जा सकता, ये तो हवा बनाने वाली बात है। बीजेपी की अपनी ताकत है। जो 4 फैक्टर हैं बीजेपी के, मैं हमेशा से पिछले 2 साल से बताता रहा हूँ। क्या क्या फैक्टर है? 4 फैक्टर है। एक तो हिंदुत्व का जो विचारधारा है, ठीक है, एक विचारधारा का वोट है। दूसरा, उन्होंने ये नेशनलिज्म का जो एक नया लिवर ऐड कर दिया, उसमें हाइपर नेशनलिज्म कह लो, नियो नेशनलिज्म कह लो, राष्ट्रवाद। ये डोंट यू थिंक इट इज अ जिंगोइज्म? वो अलग बात है। हाँ। आप उसको क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन। मैं कह रहा हूं कि किन 4 मतलब बीजेपी के वोट, आपने कहा कि वो बीजेपी मशीनरी का स्ट्रेंथ नहीं है, इन 4 चीजों का है। पहला विचारधारा, दूसरा ये नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, तो लाभार्थी एज दे कॉल इट, जिनको डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा, आवास योजना में, किसान स्वनिधि योजना में, सिलेंडर मिल गया, शौचालय मिल गया। तो लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि बीजेपी को वोट करता है। और चौथा है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल, फिनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मसल। अब मान लो आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास पैसे भी नहीं उतने होते हैं कई कैंडिडेट्स के पास कि आप ठीक से अपना प्रचार कर सकें। बीजेपी के कैंडिडेट के पास, उसके पास काडर भी है, पैसा भी है, ऊपर से सपोर्ट भी है, प्लस उसको, लेकिन मेन जो फैक्टर है वो 3 है। हिंदुत्व का विचारधारा, राष्ट्रवाद, लाभार्थी और इलेक्टोरल मसल, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो भी आप कह लो। ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के बल पे आप सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो जब ये चारों चीजें साथ में आती हैं तब आप चुनाव जीतते हैं। এই 3খন ষ্টেটত, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে এটা ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে। नहीं, ये सरप्राइज अब ये 3টা নতুন মুখ লৈ আহিলে চিফ মিনিষ্টাৰ। अच्छा, चीफ मिनिस्टर চিফ মিনিষ্টাৰ, ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি? देखो, स्ट्रेटेजी तो ये है कि पूरी तरीके से बीजेपी डिपेंडेंट है मोदी जी पे। देश ने वो दौर देखा है इंदिरा जी का, करीब करीब यही स्थिति थी जब इंदिरा जी ने जिसके सर पे हाथ रख दिया वही आदमी चीफ मिनिस्टर है जी। तो करीब करीब वही चीज़ आपको आज बीजेपी में होता दिख रहा है, जहाँ पर आप कितने बड़े लीडर है ये महत्व का विषय नहीं है। अगर मोदी जी का या बीजेपी के टॉप लीडरशिप का आप पर भरोसा है तो यू आर द लीडर। क्योंकि पार्टी का ऐसा मानना है, एंड टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट ऑल्सो, कि जो वोट हमें मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, वो मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। मोदी के नाम पे मिल रहा है। तो जो लीडर है, तो एक तरह से ये जो बीजेपी का अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक था उससे ये अलग हट रहे हैं। और लंबे समय में मेरा अपना मानना है कि इससे नुकसान भी उनको होगा, क्योंकि जब यही कल्चर कभी बीजेपी कांग्रेस में था ये हाई कमान ने जिसको कह दिया, नहीं 1989 तक था, राजीव गांधी भी जब 400 एमपी के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको बोल दिया वही चीफ मिनिस्टर है। उस समय के बाद जो 15-20 साल में बीजेपी 1980 के बाद बढ़ी है, तो बीजेपी के ताकत होती थी रीजनल जो लीडर्स हैं, जो लोकल छत्रप जिसको कहते हैं, कि राज्य के स्तर पर बहुत मजबूत लीडर होते थे। नरेंद्र मोदी भी एक वैसे ही लीडर थे जो गुजरात में केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, नरेंद्र मोदी, ये बड़े लीडर थे वहाँ के। अब अगर वहाँ के आज देखेंगे, अब आप जब वाजपेयी और आडवाणी थे तो आप राज्यों में बड़े लीडर्स का नाम ले सकते थे, वो चाहे मोदी जी यहाँ हो, कल्याण सिंह हो, शिवराज सिंह हो, उमा भारती हो, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हो, हर भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में, हर राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार बनी या बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी, वहाँ उनके एक बड़े चेहरे होते थे। उससे अब अगर आज आपसे मैं पूछूं भाई हरियाणा में कौन लीडर है इनका, कोई गुजरात में कौन चीफ मिनिस्टर है, आज ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। एवरीथिंग इज बिकमिंग मोदी सेंट्रिक। तो इसकी कुछ ताकत है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान भी है, क्योंकि आपकी रीजनल लीडरशिप जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और अगर मोदी जी के नाम पर वोट थोड़ा भी कम हुआ तो आपके पास कोई सेकेंड लाइन उस तरह की है नहीं। अब वो कहने को ये कह सकते हैं कि नहीं हम बना रहे हैं, सेकेंड लाइन नया खड़ा कर रहे हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन ये इस तरह का चीज़ इस देश ने ऐसा दौर देखा है, ये नई बात नहीं है। इंदिरा जी के ज़माने में जो कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कांग्रेस थी, उसमें
राज्यों में बड़े लीडर होते थे। हाँ, इसीलिए तो सिंडिकेट बना। फिर जब इंदिरा जी आई तो राज्यों में जो बड़े लीडर थे उनकी धीरे धीरे उनकी ताकत कम हुई। फिर ये हाईकमान वर्ड ही वहीं से पैदा हुआ कि जो हाईकमान चाहेगा वही होगा। तो कहीं ना कहीं टू दैट एक्सटेंट बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, जहां पर कि जो हाईकमान है, जो लीडर है बीजेपी का, ही इज ऑल इन ऑल। उन्होंने जिसको कह दिया उसको सबको मानना है। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজ মেজ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ। আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত নিৰ্বাচন কৌশলী আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰশান্ত কিশোৰ। এতিয়া মোদী যিহেতু ইমান বেছি পাৱাৰফুল আৰু ইমান বেছি মোদী চেণ্ট্ৰিক পলিটিক্স চলি আছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি এইটো কেনেধৰণে লয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোক পেৰেলেলি লিড কৰিব পাৰিব? नहीं, देखो, मोदी बहुत बड़े लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पर पार्टी चलती है, उन्हीं के नाम पर वोट मिलता है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उतना बड़ा कोई लीडर होगा तभी उनको चैलेंज करेगा, तो ये आपका भ्रम है। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो इंदिरा गांधी को चैलेंज करने वाले इंदिरा जी जितने बड़े लीडर नहीं थे। राजीव गांधी को जिसने चैलेंज किया, बीपी सिंह, उस समय राजीव गांधी के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। वो तो जनता जब आपके साथ खड़ी हो जाती है तो जनता और नैरेटिव आपको बड़ा बनाता है। मोदी आज जितने बड़े लीडर हैं, 2014 में इतने बड़े लीडर नहीं थे। जनता ने जब बना दिया तो आप बड़े बन गए। जब एक बार आप वहां पहुंच जाएंगे, जो कुर्सी पर बैठता है बाय डिफॉल्ट वो आपको बड़ा दिखता है, जितना है उससे ज्यादा दिखता है। और जो एक कहावत है ना कि आपसे पहले जो यहाँ तख्ते नसी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो वो जो लोग वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं, कुछ तो उसकी अपनी भी आभा होती है और कुछ अगल बगल मीडिया सारा जो सराउंड साउंड है वो ऐसा बना देता है कि भाई आपसे बड़ा कोई अब है ही नहीं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। ऐसी बात है नहीं। लोकतंत्र में देखिए 2019 में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली, उसके बावजूद अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें बीजेपी को सिर्फ 38 लोगों ने वोट दिया, 62 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, खिलाफ दिया। अब उनके खिलाफ हो या नहीं, उनको वोट नहीं दिया। नहीं। तो ये दिखाता है कि विथ ऑल व्हाट आई सेड, हिंदुत्व की विचारधारा, पार्टी, लाभार्थी, राष्ट्रवाद, मोदी, संगठन, आरएसएस, सब मिलाकर भी आप देश में 100 में 38 आदमी को ही अपने साथ कर पाए। वो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारत जैसे देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता है। विपक्ष और विपक्षी पार्टी दोनों में फर्क करना समझे। विपक्ष, अपोजिशन कमजोर नहीं है, अपोजिशन पार्टी कमजोर हो कुड सकते बी हैं। वीकर। तो मेक दिस डिस्टिंक्शन। कई बार भाई अगर राहुल गांधी की कांग्रेस मजबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि देश में हर आदमी मोदी मोदी कर रहा है। ये संभव है कि देश में बहुत अपोजिशन, विपक्ष, बहुत लोग सहमत नहीं है मोदी जी से, लेकिन उनको कांग्रेस में ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, इसलिए वो वहां जाकर वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी, मैं আকৌ সুধিছোঁ আপোনাক যে राहुल गांधीर लीडरशिपत कांग्रेस ग्रो কৰিবনে নাই, कांग्रेस उठिब পাৰিব नहीं না, कर আপুনি सकता है, केनेके? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखो, आप किसी को कितना समय दोगे? आप वर्ल्ड वाइड आप देख लें, जहां पर डेमोक्रेसी है, आपको एक मौका मिलता है, कभी कभी 2 मौके मिलते हैं। ये क्यों नियम बना हुआ है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप अगर एक बार में नहीं जीत पाए, 2 बार में नहीं जीत पाए, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि यू विल बी एबल टू डू इट इन 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट। आप एक ही चीज को लगातार करते रहेंगे और उससे रिजल्ट दूसरा एक्सपेक्ट करेंगे, वो तो हो नहीं सकता है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लिटरली 14 में चुनाव लड़ा गया, हार गई कांग्रेस पार्टी। 2019 में लड़े, फिर हार गए। अब 2024 में फिर लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है, तो बात सेटल्ड है। लेकिन एक जरूर शर्त लगाना चाहिए कि भाई अगर 24 में भी आप हारते हैं तो प्लीज आप इस जगह को छोड़िए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। वो तो छोड़ दे चुका है, लेकिन जबरदस्त उसका बताया फिर। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो कहने की बात है। व्हाट इज द स्टोरी एक्चुअली? नहीं, स्टोरी की बात क्या है भाई? आप कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी चलाते हैं, इसमें क्या है? ये कोई स्टोरी थोड़ी ना। आप पत्रकार हैं, आप कौन नहीं जानता है बिना राहुल गांधी के मर्जी के कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिल सकता आज की कांग्रेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक ईमानदारी है, उनको
ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई अगर मुझे 3 मौके मिले और मुझसे नहीं हुआ तो लेट इट बी समबडी एल्स हु कैन टेक ऑन। ऐसा नहीं है कि कोई देश में है ही नहीं, लेकिन मैं हराऊंगा भी, मैं हरा पा भी नहीं रहा हूं और दूसरे को आने भी नहीं दूंगा। टू दैट एक्सटेंट आई सी हिम एट फॉल्ट। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই এতিয়াও বিশ্বাস কৰে যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাটোৱে সাউথত যথেষ্ট প্ৰভাৱ। देखो ऐसा है, ये तो अगर भारत जोड़ो यात्रा के ही प्रभाव से जीत रहे होते तो राजस्थान जीत जाना चाहिए था, मध्य प्रदेश जीत जाना चाहिए, वहाँ तो बहुत भीड़ आई थी। छत्तीसगढ़ में आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, वहाँ तो आपकी सरकार थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि को जरूर कुछ लाभ मिला है, लेकिन किसी व्यक्ति के, किसी नेता के छवि में सुधार किसी प्रयास से होना और उसका इलेक्टोरल डिविडेंड मिलना दोनों अलग बातें हैं। आपकी छवि बहुत अच्छी हो सकती है, स्टिल यू कैन गो एंड लूज इलेक्शन। इलेक्शंस आर नॉट ओनली अबाउट छवि, दैट्स ट्रू। सो व्हाट लॉट मोर देन दैट। और मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी पिछले 10, 12, 15 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है, हार चुका है। तो कहीं ना कहीं उनको ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी देखना चाहिए और ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं, खास करके जब कांग्रेस बीजेपी से लड़ती है, तो दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड दैट मैजिक फॉर्मूला टू डिफीट और टू टेक ऑन बीजेपी। एक चुनाव जो राहुल गांधी को मैंने मजबूती से लड़ते देखा बीजेपी के खिलाफ, वो पिछली बार नहीं, पिछली बार जो गुजरात में इलेक्शन हुआ था 2017 में, उस चुनाव को मैंने देखा था। राहुल गांधी ने लीड किया था फ्रंट से, और तब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे नहीं, गुजरात इलेक्शन के बाद बने थे, और कांग्रेस केम क्लोज, वेरी क्लोज, यस ट्रू, नॉट वेरी क्लोज बट दे केम क्लोज। दे कुड हैव पुल्ड इट ऑफ इफ Yeah. लिटिल बिट ऑफ लक एंड सम मोर एफर्ट, दे कुड हैव पुल्ड इट ऑफ। খুব কম ডিফাৰেঞ্চত, কম মাৰ্জিনত হাৰিছিলে। हाँ, मतलब 72 सीट, Yes. ये कुल जमा 15-20 सीट का फर्क था, और वो भी जो सीट कांग्रेस हारी वो काफी सीटें ऐसी थी बहुत कम मार्जिन से। कम मार्जिन। तो मुझे लग रहा है कि वो एक इलेक्शन जिसमें अगर आप मुझे कहोगे कि ओ ही डिड वेरी वेल, ही फॉट लाइक अ लीडर, ऑपोजिशन लीडर शुड फाइट। ये जो कर्नाटक और तेलंगाना का रिजल्ट है, इट्स मोर टू माय माइंड, विथ आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम कांग्रेस, दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर द विक्ट्री, बट to my mind it's more vote against the incumbent than for Congress. That's true. Telangana mein vote was against BRS. That is negative voting. And Karnataka again BJP ran a very lackluster government, और वो तोड़ फोड़ हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रो कांग्रेस का वोट है, और कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन में या तेलंगाना में आपको वो दिखेगा। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজ মেজ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত নিৰ্বাচন কৌশলী আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰশান্ত কিশোৰ। What are the qualitative difference of BJP and Congress as far as the style of functioning is concerned? See, they are two parties, they are very different, the way they operate, the way they are structured. Congress is a mass-based party, BJP is a cadre-based party. That's a fundamental difference you have to understand. Secondly, Congress is by and large run by a family or few families. मतलब एक परिवार या कुछ परिवारों की पार्टी धीरे धीरे बन गई है। बीजेपी में भी नेताओं के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका शुरुआती दौर है, सेकंड जनरेशन अभी आना शुरू हुआ है, तो अभी जो सेकंड जनरेशन है, वंशवाद जो है वो टॉप लीडरशिप पर नहीं पहुंचा है। तो वो एक बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा है। कांग्रेस में जो लोग भी टॉप पर हैं, मिड और अपर लेवल पे हैं, वो सब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले लोग हैं। तो वंशवाद तो बहुत बेसिक ताते सोमाई गई। हाँ, मतलब आप वंशवाद को अगर उसके मोरल और इथिकल चीज़ों को हटा भी दें, तो ऐसा है कि अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो फिर सचिन तेंदुलकर को हमने नहीं देखा होता। अगर तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो विराट कोहली को आपने नहीं देखा होता। तो जो लोकतंत्र की ताकत है कि जो सबसे काबिल व्यक्ति है आपके साथ, वो आपको लीड करे। जब आप परिवारवाद
परिवार के ही लोगों को नेचुरली बैटन पास करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको खुद का है, क्योंकि यू आर सुपरसीडिंग मेरिट। और दूसरा इसका बड़ा असर ये होता है कि समाज में जो रियली संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है वो आपको एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए विकल्प देखता नहीं है। उसको मालूम है कि भैया यहाँ तो यही रहेंगे या नेताओं के बच्चे ही रहेंगे, मुझे तो अवसर मिलेगा नहीं। तो जो नई फसल की आमद है, नए लोगों की आमद है, वो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी रोज ये कह रही है हमारा बूथ लेवल वर्कर भी ऊपर जा सकता है। तो गांव में बैठा हुआ अगर कोई लड़का राजनीति करना चाहता है तो उसको लगता है मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो ये तो परिवार वाले हैं इस राज्य में। और सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, राज्यों में भी वही स्थिति है, जिलों में भी वही स्थिति है। जहां आप जाएंगे वो कांग्रेस का कोई ना कोई परिवार वाला है। इसलिए नए लोग उसमें आने से हिचकते हैं। अच्छा। और इसका नेचुरल फायदा उसको मिल रहा है, जो कि ये एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग जो दिखा पा रहा है कि भाई आप हमारे आएंगे, मेहनत करेंगे, तो प्रयास करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वंशवाद का और मोरल इशू तो है ही, मोरल इशू है। तो मैं तो कह रहा हूं मोरल इशू हटा भी दीजिए तो इसके ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक बहुत नुकसान है, और कांग्रेस के कमजोर होने में इसका एक बहुत बड़ा असर है। नाउ आई एम गोइंग टू द इंडिविजुअल मोदी एंड राहुल। इसका एওঁলোকৰ মাজত লিডাৰশ্বিপ কেপেবিলিটিৰ ফালৰ পৰা কোৱালিটেটিভ ডিফাৰেন্স আপুনি কি নোটিছ কৰে? देखो ये किसी को ऐसे सामने बैठा के तो ठीक है, compare fair करना नहीं ठीक है, नहीं है। fair आप नहीं है। इंडिविजुअल मोदी की अपनी स्टाइल है, वो नीचे से उठ के आए हैं, समाज से संघर्ष करके, एक डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट पेडिग्री है उनकी, उनकी अपने स्ट्रेंथ है उस वजह से। राहुल गांधी की का बैकग्राउंड अलग है, उसका एक अपना स्ट्रेंथ है, लेकिन परेशानी है। और दोनों का भी कंपैरिजन आज के तारीख में मुझे लगता है कि ठीक नहीं, किसी दो नेता का कंपैरिजन ठीक नहीं है। नाउ लेट अस कम टू द इंडिया एलायंस। আপুনি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটোৰ ভৱিষ্যতটো কি দেখিছে? नहीं, मुझे उस अलायंस का बहुत कोई ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं दिखता है। अच्छा। क्योंकि नेताओं के साथ में आ जाने से या उनके साथ में बैठ के चाय पीने से, बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपको सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है और बातचीत में लोग बताते हैं कि इंदिरा जी को हराने के लिए सारे दल एक साथ आए और हरा दिए। वो आधी बात बता रहे हैं। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता तो सारे दल साथ में आ जाते, तो क्या वो इंदिरा गांधी को हरा सकते थे? नहीं। सेम चीज जब बीपी सिंह का एरा देखिए, जब राष्ट्रीय मोर्चा बना जनता दल के नेतृत्व में, बीपी सिंह के नेतृत्व में, तो पहले बोफोर्स मुद्दा बना जी। पहले देश व्यापी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ, फिर उस मुद्दे पर दल और नेता साथ में आए तो कहानी बनी। इंडिया अलायंस में जो मैं देख रहा हूं कि इन्होंने एक काम किया कि अपना नाम यूपीए से बदल के इंडिया किया, और वो टैक्टिकली अच्छा मूव है, उसका उनको फायदा भी मिला। क्यों? अपने आप को इंडिया अलायंस कह देना एटलीस्ट आई बॉल कैच करने के हिसाब से ज्यादा ठीक है, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं किया। ना आपने नैरेटिव बनाया, ना आपने व्यवस्था बनाई, ना आपने ज्वाइंट कैंपेन किया, ना आपका कोई कम्युनिकेशन, ना कोई कंट्रोल कमांड सेंटर है, ना आपने एक दूसरे की मदद के लिए कोई प्रयास किया। तो अगर आपने नाम में फेरबदल किया तो उसका फायदा मिला, कुछ करोगे तब तो फायदा होगा। तो इंडिया अलायंस वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 3 बैठक अभी तक की उन्होंने, 4 बैठक पिछले 4 महीनों में, और प्रोबेबली इट इज टू लेट नाउ। इट्स टू लेट नाउ। आप ये समझिए कि मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं भाई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज हो ना हो, सबको मालूम है कि 5 साल के बाद चुनाव होगा। तो जो लोग भी आज इंडिया अलायंस बना रहे हैं, व्हाट प्रिवेंटेड देम कि इसको 2 वर्ष पहले बना लेते? ये सारे दल तो देश में ही थे। आप 2 वर्ष पहले बनाते तो एक नैरेटिव बनता, आपके कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती, लोगों को जानकारी होती व्हाट इंडिया अलायंस स्टैंड्स फॉर। आज तो लोगों को ये मालूम है कि भाई बीजेपी एनडीए एक साइड है, और इसको हराने के लिए सारे दल एक साथ आकर अपने आप को, जो पहले यूपीए कहते थे वो इंडिया कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। सामान्य आदमी जो है वो तो ऐसे ही देखता है। इंडिया अलायंस की ओर से ना आपने कोई नैरेटिव दिया, ना कोई चेहरा दिया, ना कोई ज्वाइंट प्रोग्राम दिया, तो फिर लोगों के नजरिए से, असम में अगर आप युवा एक हैं तो आप इंडिया अलायंस को देख के व्हाई शुड यू गेट एक्साइटेड विथ इट?
अगर आप बिहार में, यूपी में कोई यंग आदमी है तो वाई शुड ही और सी गेट एक्साइटेड विद इंडिया अलायंस? ठीक है, इंडिया अलायंस बना है, अच्छा है, सब साथ में आके ऑपोजिशन देश में मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो ऑपोजिशन क्या ऑफर कर रहा है ये भी तो देखेंगे ना लोग। এতিয়া মমতা বেনাৰ্জী পৰহি 11th ডিচেম্বৰ কৈছে যে মই লিডাৰশ্বিপ ল'বলৈ ৰেডি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ। জনতা দল ইউৰ কিছুমান নেতাই কৈছে যে নীতিশ কুমাৰক লিডাৰশ্বিপ দিব লাগে, আৰু 3খন ষ্টেটত হাৰি যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ এতিয়া আৰু বিগ ব্ৰাদাৰ ষ্টেটাছটো নাই। এনেকুৱা অৱস্থাতে এলায়েন্সটো ভাগি যাব নেকি ইলেকশ্যনৰ আগত? देखो, फिर मैं वही बात आपको कहूँगा, दो बातें हैं। एक कि कौन इंडिया अलायंस का लीडर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ दे वुड हैव गॉट ए नैरेटिव, अगर इंडिया अलायंस का कोई नैरेटिव होता जो जन जन में आज चर्चा का विषय होता, तो नैरेटिव से फेस निकल आता है। लेकिन जहां तक लीडरशिप की बात है, इंडिविजुअल की बात न करें कि इंडिया अलायंस को किसको लीड करना चाहिए, तो ये बेकार की बात है। लीड उसको करना चाहिए जो सबसे बड़ा दल है, और आज की तारीख में सबसे बड़ा दल इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है तो कांग्रेस को ही लीड करना चाहिए। सेकंड टीएमसी है और तीसरा डीएमके है। कहने को तो कोई भी कह सकता है भाई मैं भी बनूंगा, सबकी इच्छा हो सकती है, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, और कांग्रेस का नेतृत्व जिसको भी अब चाहे, कांग्रेस को ही उस अलायंस को लीड करना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि उसकी एक मर्यादा रखनी चाहिए कि भाई अगर आपसे ये नहीं होता तो फिर अगली बार 2029 के लिए भी आप क्लेम मत करो, तब फिर किसी दूसरे को करने दो। अभी जरूर कांग्रेस ने प्रयास किया है, वो कम है, ज्यादा है, अच्छा है, खराब है, लेकिन देश के स्तर पर लड़ने का प्रयास तो कांग्रेस ही कर रही है। तो उस नाते से उस अलायंस का चेहरा या उस अलायंस की लीडरशिप कांग्रेस के पास होनी चाहिए। আপুনি বহুত দিন ধৰি প্ৰায় 2 ডিকেডছ আপুনি ভোটাৰৰ সাইকোলজি, ভোটিং পেটাৰ্ন, গোটেই দেশৰ পলিটিক্স আপুনি খুব ক্লোজ কোৱাৰ্টাৰ, আপুনি খুব ওচৰৰ পৰা চাইছে। যোৱা 10 বছৰত ভাৰতৰ ভোটাৰৰ সাইকোলজি বহুত সলনি হৈছে নেকি, বা ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ সাইকোলজি খুব সলনি হৈছে নেকি? नहीं देखो, মানে এন্টি এস্টাব্লিশমেন্ট ক্যারেক্টারটো হেৰুৱাইছে নেকি? नहीं, कहीं कोई डेटा इसको बैक नहीं करता है कि कोई इनकम्बेंट सरकार सब जगह हार रही है, क्योंकि कई सरकारें, राजस्थान में 5वीं बार सरकार रिपीट हुई है, तो ऐसा कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। ये जरूर है कि जो राजनीति है वो समाज का आईना है। अगर समाज में 50 करोड़ लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो कि आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं था, तो ऑब्वियसली ये 50 करोड़ लोग हैंडहेल्ड डिवाइस से अपना न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका असर तो होगा ही होगा। किसी जमाने में पोस्ट कार्ड था तो पोस्ट कार्ड का असर था, आज फेसबुक है तो फेसबुक का असर है। लेकिन इसको हम लोग कुछ ज़्यादा ही हाइप करके बताते हैं। भाई गांधी जी ने जो बात पोस्ट कार्ड पर लिखी, अगर आज गांधी जी होते तो शायद फेसबुक पर लिखते। महत्व इसका नहीं है कि पोस्ट कार्ड पर लिखा उन्होंने कि फेसबुक पर लिखा, महत्व इसका है कि किसने लिखा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और क्या लिखा है, मैसेंजर और मैसेज क्या है, उसका महत्व है। आज फेसबुक है, कल कोई दूसरा हो सकता है। तो राजनीति में परिवर्तन ये हुआ है कि समाज में जो इंटीग्रेशन है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है इसकी बहुत बेहतर जानकारी आज असम में है। जो असम में अगर आप कुछ करोगे तो उसका, जैसे अगर सनातन को लेकर रिमार्क तमिलनाडु में दिया गया, तो असम में भी लोग देन एंड देयर उसको जानते हैं। अगर कोई दुर्घटना कहीं किसी राज्य में होती है तो दूसरे लोग भी उसको जानते हैं बहुत जल्दी से, तो उसका एक नेचुरल असर होता है। लेकिन कोई आमूल चूल परिवर्तन वोटर्स के बिहेवियर में अगर आप डेटा को पिछले 75 साल को एनालाइज करेंगे तो अभी तक ऐसा मुझे दिखा नहीं है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सी प्रशांत जी, राम मंदिर खुलिब 26 জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন আহি আছে, এপ্ৰিল মেত ইলেকশ্যন আহি আছে। ৰাম মন্দিৰৰ কিবা প্ৰভাৱ ইলেকশ্যনত পৰিব নে নপৰে? नॉट मच, नॉट मटेरियल। কেনেকৈ? देखो, इलेक्शन में कोई एक मुद्दा जीवन में सिर्फ एक ही बार मुख्य मुद्दा बनता है। वो मुद्दा तब बना जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन चलता रहा है, कार सेवक पहुंचते रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, कई बार मुद्दे, लेकिन वो सेंट्रल मुद्दा कभी वो नहीं बना।
और ये आप मेरे पास मोदी जी ने खुद अपने जब पार्लियामेंटेरियंस से मिल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा भाई राम मंदिर के आधार पर सिर्फ आप नहीं जीत सकते हैं। वो एक बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा चुनाव के नजरिए से मुद्दा था, आज वो चुनाव उसके नाम पर नहीं होता है। अच्छा, एक चुनाव हुआ था जिसमें राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ा था, जिसमें बीजेपी 2 से बढ़कर 62-64 पहुंची हो थी। गया। वो फिर दोबारा नहीं होगा। आप मंडल का देख लो, मंडल के नाम पर जब मंडल कमीशन को लागू करने की कोशिश की, देश में इतना आंदोलन हुआ, लोगों ने आत्मदाह कर लिया। उसी मंडल को जब नरसिम्हा राव ने लागू किया 4-5 साल के बाद, तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। এইটো ইলেকশনত তো মণ্ডেলাইজেশ্যন টু বুলি কোৱা হৈছিল। कुछ नहीं उससे होना है, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि हिस्ट्री टेल्स यू कि एक मुद्दे पर, किसी एक मुद्दे पर आप समाज को एक बार से ज्यादा आंदोलित नहीं कर सकते। जैसे जन लोकपाल पर अन्ना का आंदोलन हुआ, अब ऐसा नहीं कि जन लोकपाल पे फिर आपसे अगर आप अन्ना भी बैठ जाए तो नहीं होने वाला है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जेपी भाई भ्रष्टाचार उससे पहले भी मुद्दा था, भ्रष्टाचार आज भी है, लेकिन भ्रष्टाचार पर एक ही बार देश आंदोलित हुआ। जी, वंशवाद पहले भी था, बाद में है, जेपी ने एक बार उसको मुद्दा बनाने में सफलता पाई। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये रोज रोज ऐसे मुद्दे फिर से लोगों को एक्साइट नहीं करते हैं। तो प्योरली चुनाव के नजरिए से मुझे नहीं लगता, और बीजेपी के लोग ऐसा नहीं समझते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक बहुत लंबे समय के आंदोलन के बाद उस चीज को एक तरीके से कल्मिनेट होता हुआ देख रहे हैं हम लोग, तो उसको बीजेपी अपने हिसाब से थोड़ा हाइप करेगी, लेकिन उसका सीधे वोटर पर कोई बहुत बड़ा चुनाव पर डिसाइसिव असर होगा मुझे नहीं लगता। और आप अगर मेरी बात का भरोसा नहीं, किसी गांव में चले जाएं, जो भाजपा का वोटर है उससे पूछो भाई भाजपा का वोटर राम मंदिर का शिलान्यास बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसलिए दे रहे हो कि मोदी के लिए दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो मोदी को कहेगा कि मोदी के लिए दे रहा हूं। राम मंदिर 370 उससे बड़ा मुद्दा है आज, क्योंकि वो नया मुद्दा है। মই এই কথাটো আপোনাক সুধিব খুজিছিলোঁ যে POK নতুনকৈ উলিয়াই লৈছে ইছ্যুটো। অমিত শ্বাহে পাৰ্লামেণ্টত কৈছে নেহেৰুৱে ভুল কৰিলে, POK আমি ঘূৰাই আনিম, POKৰ 24টা ছিট আমি ৰাখি দিছোঁ, ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছোঁ, কিয় এইটো আমাৰ নিজৰ মাটি। এতিয়া POKটো যদি এনেকুৱাকৈ পুলৱামাৰ নিচিনাকৈ যদি এইটো ভোট কেচাৰ হৈ देखो, मैं ये जो मैंने आपको सेकंड लीवर बताया, राष्ट्रवाद, भारत विश्व गुरु बन गया, देश विदेश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई, G20, POK, मतलब अब हम पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, ये जो सारा कुछ है, ये दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ राष्ट्रवाद, जिसको कि वो एक तरीके से ओन करते हैं कि भाई हम देश की प्रतिष्ठा, देश की शान को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी को अगर आप देखेंगे, गुजरात में भी उन्होंने गुजरात वर्सेस, अगर आपने मोदी को अटैक किया तो कह रहे भी गुजरात मतलब मोदी, मोदी मतलब गुजरात। तो धीरे धीरे अभी वो इंडिया में भी वो करने का प्रयास, आप ये सब राष्ट्रवाद का जो उनका अपना एक मेन लिवर है उसको मजबूत करने के तरीके हैं, चाहे वो POK पे स्टेटमेंट हो, G20 का इतना बड़ा, G20 को इतना बड़ा बनाना हो, या फिर ये बताना कि भाई भारत देश मतलब विश्व, आप सामान्य लोगों से बात करेंगे तो लोग बताएंगे भाई मोदी के आने के बाद देश की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ गई है, बढ़ गई है। ये लोगों को लगता है। अब वो डेटा से बैक्ड है नहीं है, बढ़ी है नहीं बढ़ी, वो अलग बात है। लेकिन एक सर्वे अभी आया था जिसमें ये कंपैरिजन किया गया है कि देश में लोग ऐसा भारत के लोग ऐसा समझते हैं कि विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, विदेशों के लोग ऐसा नहीं समझते। वो कह रहे नहीं जैसे पहले थी वैसे ही थे। लेकिन देश में ये माहौल बन गया, तो उसकी वजह से मैंने आपको कहा कि हिंदुत्व तो था ही, राम मंदिर है और जो भी हिंदुत्व के मुद्दे हैं, उसके साथ ये राष्ट्रवाद का नया तड़का लगा दिया। और राष्ट्रवाद को इतनी मजबूती से बनाने में ये सारे चीज फैक्टर उसमें काम करते हैं। प्राइस हाइक और अन्यान्य इश्यू बिलाके भोटारक इमान इम्पैक्ट है बहुत। देखिए, ये कई बार लोगों को लगता है भाई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, प्राइस राइज मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं, ये मुद्दे हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है और खेत में फसल लगी हुई है, तो वो फसल अपने आप से तो आपका भूख तो नहीं जाएगा, उस फसल को आपको काटना पड़ेगा, काट के उसकी हार्वेस्टिंग करनी होगी, उस गेहूं का आटा बनाना पड़ेगा, आटा को रोटी बनाकर फिर उसको खाना पड़ेगा। यहाँ फसल लगी हुई है और मुझे भूख लगा है, तो इसका मतलब मेरा पेट तो नहीं भर जाएगा। तो ये मैं जो बार बार आपको पहले भी कहा कि विपक्ष नहीं कमजोर है, ऐसा नहीं है कि देश में कोई मोदी के विपक्ष में नहीं है, मेजॉरिटी लोग उनसे संतुष्ट नहीं है,
लेकिन जो लोग संतुष्ट नहीं है उसको आप एकत्र करके, कलेक्ट करके, एक साथ लाकर एक फॉर्मेशन में, एक मिनॉरिटी पे, एक नेता के साथ पीछे लाइएगा, तभी तो होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? यही तो उनका रोल है, उनका काम है। समाज के लिए वो इंटरफेस बनकर उनकी आशाओं को, एस्पिरेशंस के वॉइस बने, उसको रिफ्लेक्ट करें अपने पॉलिसीज में, नीति में। तो वो अगर अपोजिशन पार्टीज नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको बीजेपी जितनी मजबूत है उससे ज्यादा दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन जितनी है उससे ज्यादा इसलिए दिख रही है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজমেজ। 2024 কি হ'ব দেশত? 2026 में 24 तो अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं करते। आज अगर चुनाव हो तो बीजेपी को दिसंबर तो हो गया ये तो। आज अगर चुनाव हो हाँ। तो बीजेपी को एडवांटेज है। कितना सीट मिलेगा आपका हिसाब? ये इस तरह का प्रेडिक्शन मैं करता नहीं। कितना कम मिल सकते हैं? नहीं, मैं इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज दे आर अहेड, वे अहेड। उसका आसन बढ़ेगा या कमेगा? नहीं, ये इस तरह के जो गेस वर्क करते हैं ना जो लोग, ये इट्स लाइक कॉलिंग द कॉइन, हेड आएगा टेल आएगा और फिर कोई ना कोई तो आएगा तो फिर कहा देखो मैंने कहा था। नहीं, ऐसी बात देखो, किसी को इसका ज्ञान नहीं होता है। हम लोग इस काम को बहुत लंबे समय तक मैंने किया है। जो भी अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, सर्वेयर कहते हैं, एट बेस्ट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस। किसी को ये इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी है, दिल्ली वहीं रूल कर रहे हैं, दिल्ली जैसा एक छोटा सा सिटी स्टेट है, उस वहां नहीं पता चला कि नीचे आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीट आ रहा है। अमित शाह को लोग बताते हैं इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, इतना उनको राजनीति का ज्ञान है, बंगाल में कह रहे थे 200 सीट आएगा, 77 सीट आ गया। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए कह रहे भी हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, सब जगह कहानी उल्टी पड़ गई। केसीआर वहां पर मानते भाई ये बहुत वाइली पॉलिटिशियन, इनको तो कोई टच ही नहीं कर सकता है, उनके जमीन उनके पैर के नीचे से निकल गई, 39 पे आ गए, उनको पता नहीं चला। तो कोई भी जो ये दावा करता है कि किसको कितनी सीट आएगी, तो वो इन्फॉर्म्ड गेस है। तो वो मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी एज ऑफ टुडे दे आर अहेड, वे अहेड ऑफ देयर चैलेंजर्स। प्रशांत किशोर जी, मैं এটা কথা সুধিব খোজো। আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পিকচাৰখন আপুনি সদায় চকুৰ আগত ৰাখে, আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমীক্ষা কৰি থাকে, আপুনি মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনত থাকে, অসমলৈও মাজে মাজে আহে। আপোনাৰ যিহেতু আপুনি অসমৰ জোৱাই, গতিকে অসমলৈ খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নাহিলেও মাজে মাজে আহে। প্ৰশান্ত কিশোৰ জি, এটা কথা যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই শেহতীয়া ইলেকশ্যন কেইটামানত খুব সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে। মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা, ইয়াৰ আগতেও তেওঁ কেইবাখনো ষ্টেটত প্ৰচাৰ চলাইছে। এতিয়া আপুনি মোৰ সাক্ষাৎকাৰৰ আৰম্ভণিতে কৈছিল যে বিজেপিত কোনো ছেকেণ্ড লাইনাৰ লিডাৰশ্বিপ এতিয়ালৈকে ডেভেলপ কৰা নাই মোদীৰ বাহিৰে। বিজেপিয়ে ক'ব যে আমাৰ হৈ আছে, কিন্তু ছেকেণ্ড লাইন লিডাৰশ্বিপ অহা নাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেবাকৈ ছেকেণ্ড লাইনৰ লিডাৰশ্বিপত আহিব পৰাৰ কিবা পচিবিলিটি আপুনি দেখে নেকি? नहीं, देखो, मैंने जो बात कही कि जब आडवाणी और वाजपेयी थे, उस समय जो राज्यों के लीडर थे, उनकी जितनी ताकत थी, उनकी जितनी पॉपुलैरिटी थी, जितनी उनकी पार्टी में से थी, उसके मुकाबले आज जो सेकंड रंग लीडर हैं, उनकी ताकत, उनकी से उतनी उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। इस सेकंड रंग तो कोई तो रहेगा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री रहेगा, कोई प्रदेश का अध्यक्ष रहेगा। लेकिन जब मैं क्या कह रहा हूं, उस समय के जो सेकंड रंग लीडर थे, उस समय जो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहा होगा, उस समय जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जो असम का पार्टी प्रेसिडेंट होगा, उसकी पार्टी की ओवरऑल अफेयर्स में जितनी से थी, उसके मुकाबले आज की जो लीडरशिप है उसकी से कम है। और हेमंत बिस्व शर्मा उसके एक्सेप्शन नहीं है। आपने कहा वो पूरे देश में जाते हैं प्रचार करने, वो तो पार्टी जहां कहेगी वहां जाना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हेमंत बिस्व शर्मा के लिए अलग से रूल है। बीजेपी जो पार्टी है वो आपको काम देते हैं, और अगर आप पार्टी के लीडर हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। सब लोग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर नहीं जा रहे। आदित्यनाथ भी हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और अगर वहां 200 की भी सभा है तो आपको करनी पड़ेगी। अगर 200 लोग भी हैं तो भी सभा करते हैं। और ये बीजेपी चूंकि काडर बेस्ड पार्टी है, तो ये उनकी ताकत है, वो नेताओं को करना पड़ता है। उसको आप
मतलब ये मत कहिए कि ये सेकंड रंग ये जो मैं यही कह रहा हूँ कि आज जितने भी सेकंड रंग लीडर हैं इनको अगर आप कंपेयर करेंगे 1985-90 में जो सेकंड रंग थे वो सुषमा, जैसे आज आप ऐसे देखो कि अरुण जेटली था, नहीं, सुषमा स्वराज था। आप मुख्यमंत्रियों को छोड़ दो, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी देख लो 1990-95 के एरा में जो लोग थे, अरुण जेटली थे, नरेंद्र मोदी थे, सुषमा स्वराज थी, इस स्तर के लोग जनरल सेक्रेटरी थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी कौन है, नाम भी नहीं जानते आप। नाम आते नहीं। ये फर्क, जनरल सेक्रेटरी तो आज भी है, जितने उस समय थे उतने आज भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम जानता हूँ। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय अब नहीं है अभी तो जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो अभी केवल बंगाल था। हार गया, वो तो कहानी खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सेकेंड रंग लीडरशिप तो रहेगी रहेगी, ऐसा थोड़ी होगा बीजेपी में कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं होगा, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी उस समय थे और जो आज हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। उनके स्टैचर में फर्क है, उनके से में फर्क है, उनके पब्लिक परसेप्शन में फर्क है। संभव है कि पार्टी के इंटरनल मैटर में उनकी उतनी ही चलती हो, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन है। विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी है। अब विनोद तावड़े की छवि अरुण जेटली की तो नहीं है। ये सही है। तो ये फर्क है। बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी, আপুনি আমাক সাক্ষাৎকাৰটো দি ইমানখিনি সময় আপুনি আমাক দিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰশান্ত কিশোৰ এনেকুৱা এজন মানুহ, মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নীতিশ কুমাৰৰ নিৰ্বাচনী কৌশল ৰচনা কৰিছিল। নীতিশ কুমাৰ বাৰ বাৰ ইলেকশ্যনত জিকিছিল, হাৰো হাৰো হৈ যোৱা মমতা বেনাৰ্জীক জিকাই আনিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে। মোদীৰ নিৰ্বাচনী কৌশল গুজৰাটত ৰচনা কৰিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে। আৰু আজি প্ৰশান্ত কিশোৰে কেইটামান বিশেষ পৰ্যবেক্ষণ আমাৰ সাক্ষাৎকাৰত দিছে। বিশেষকৈ ভোটাৰৰ মনস্তত্ব বিশেষ সাল সলনি হোৱা নাই আৰু আগন্তুক 2024 নিৰ্বাচনত বিজেপি কিছু আগবাঢ়ি আছে, এই কথাটো প্ৰশান্ত কিশোৰে আমাক নিশ্চিত কৰিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমীয়া যিকোনো নিউজ চেনেলৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম সাক্ষাৎকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰে দিছে প্ৰাগ নিউজক, তাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद।